بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے آج راجیہ سبھا کو مطلع کیا ہے کہ وہ بجٹ کے تحت وزارت داخلہ کے کام کاج پر بحث کرانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر ایوان اجازت دیتا ہے تو پرائیویٹ ممبر بل اور وقفے سوال کو روک کر یہ بحث کی جا سکتی ہے اور 4 اپریل کو پرائیویٹ ممبر بلز کو پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ کانگریس کی رکن رنجیتا رنجن نے صبح کارروائی کے آغاز میں قانون سازی کی دستاویز میز پر رکھے جانے کے بعد آج کی کارروائی میں لسٹ میں پرائیویٹ اراکین بل کے بعد وزارت داخلہ کے کام کاج پر آگے کی بحث اور اس کے بعد ایک بل کو لسٹ کرنے پر ایک پوائنٹ آف آرڈر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان کی روایت کے مطابق نہیں ہے۔ عام طور پر اراکین کے پرائیویٹ بل قراردادوں کے بعد کارروائی ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اس پر مسٹر دھنکڑ نے ایوان سے پوچھا کیا ممبران پارلیمنٹ سوال کا وقت لنچ اور پرائیویٹ بلوں کو آج پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اراکین کو 4 اپریل کو پرائیویٹ ممبرز کے بلز اٹھانے کا موقع ملے گا۔ ایوان نے صوتی ووٹ سے اس پر اتفاق کیا، لیکن کچھ اراکین پارلیمنٹ نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ ترنمول کانگریس کے ڈیرک اوبرائن نے کہا کہ وقفہ سوال لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واحد موقع ہے جہاں کسی بھی رکن کو حکومت سے براہ راست سوال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بیجو جنتا دل کے سسمیت پاترا نے کہا کہ پرائیویٹ اراکین کے بل بہت کم ہیں اور باقاعدہ عمل یہ ہے کہ ایوان کی کارروائی آخری دن یعنی 4 اپریل کو پہلے حصے میں ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین کم از کم اراکین پارلیمنٹ کو پرائیویٹ ممبرز کے بل پیش کرنے کی اجازت دیں۔ اگر ان پر بحث نہیں ہو سکتی، ڈی ایم کے تروچی سیوا نے کہا کہ ان کا ایک پرائیویٹ بل ایوان میں پاس ہوا جس پر حکومت کو قانون بنانا پڑا۔ اس سے پہلے کارروائی کے آغاز پر مسٹر دھنکڑ نے ایوان کی جانب سے 4 اراکین یعنی روی چندر ڈیراجو اور درشیل موہن پاٹل، سنجے سنگھ اور ڈاکٹر سسمیت پاترا کو ان کی یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کی۔ مہاراشٹر کانگریس کے صدر ہرش وردھن سپکال نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی حکومت کسانوں کی مخالفت اور کسی حقیقی ضرورت کے بغیر صنعت کار اڈانی اور امبانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ناگپور گوا شکتی پیٹ ایکسپریس منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سمندر میں گودی کے ذریعے ساحلی علاقوں کے وسطی ہندوستان تک ایک براہ راست ٹرانسپورٹ کوریڈور بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد بڑے صنعت کاروں کو تجارتی فوائد فراہم کرنا ہے، جبکہ اس منصوبے کے تحت گوا کے کوئلے اور معدنیات کی تجارت کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ معدنی وسائل کے استحصال کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کوکن کے عوام کو جان بوجھ کر تقسیم کیا جا رہا اور سندھو درگ کے وزراء کے اشتعال انگیزی بیانات ذریعے تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پال گھر میں بھی اسی طرح کے حربے اپنائے جا رہے ہیں جہاں مقامی زمینی صنعت کاروں کے حوالے کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ قبائلی علاقہ ہے اور خصوصی تحفظات کے دائرے میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے دوران نافذ کیے گئے زمینی حصول قانون کے تحت یہ زمین قبائلیوں کی ملکیت میں رہنی چاہیے، مگر بی جے پی حکومت انہیں بڑے کاروباری گروپوں کو سونپ رہی ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے جعلی کرنسی کو ملک کی معیشت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا تعلق نہ صرف مالی جرائم بلکہ دہشت گردی کی فنڈنگ سے بھی جڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ عدالت نے اسی بنیاد پر رمیش سولاٹاٹ کی قبض گرفتاری کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی، جو جعلی نوٹوں کی تیاری میں استعمال ہونے والی پرنٹنگ مشین کا مالک بتایا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس نوعیت کے جرم میں ملوث افراد کی جامع تفتیش ضروری ہے اور ملزم کے جسمانی تحویل کے بغیر معاملے کی مکمل چھان بین ممکن نہیں۔ مجرم کے خلاف مہاراشٹر کے ضلع بارشی کے تمبرنی پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر میں جعلی کرنسی چھاپنے میں استعمال ہونے والی مشین رکھنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سیشن عدالت نے 14 فروری کو اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے بعد اس نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں نامزد 7 ملزمان میں سے 5 پہلے ہی حراست میں ہیں جبکہ ایک تاحال مفرور ہے۔ پولیس کے مطابق دوران تفتیش 65 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی برآمد کی گئی ہے اور شواہد سے ثابت ہوا ہے کہ جعل سازی میں استعمال ہونے والی پرنٹنگ مشین ان کی تھی۔ شریک ملزم نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ یہ مشین سولاٹاٹ نے خریدی تھی، جبکہ کال ڈیٹا ریکارڈ سے بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس کی دیگر ملزمان کی بار بار بات چیت ہوئی ہے جو ان کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے۔
बिहार के जिला पटना के टॉप 10 मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल बदनाम जमाना जराइम पेशा सोनू कुमार को पुलिस ने मानिर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट पटना शरद आरएस ने जुमे के रोज यहां बताया कि जुमरात की देर रात इत्तला मिली कि बदनाम जमाना मुजरिम सोनू कुमार अपने चंद साथियों के साथ मानेर के सुनमारवा आया हुआ है। इस इत्तला की बुनियाद पर खुसूसी टीम तश्कील दी और मज़कूरा मकाम पर छापे मारा गया। पुलिस को देखते ही मुजरिमों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपने दिफा में फायरिंग की। गोली लगने से सोनू कुमार जख्मी हो गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू कुमार के दूसरे साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गए। मिस्टर शरद ने बताया कि सोनू कुमार को अस्पताल में दाखिल करा गया। सोनू कुमार के खिलाफ दानापुर और मानेर में कत्ल समेत मुतअद्दिद फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं। मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेस वे पर महाराष्ट्र के स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1 अप्रैल से टोल में इजाफे का ऐलान किया। अगरचे एक्सप्रेस वे का मुकम्मल हिस्सा आवाम के लिए खोला जाना बाकी, लेकिन मौजूदा रास्ते पर सफर करने वाली गाड़ियों को 20% तक ज्यादा टोल अदा करना होगा। फी किलोमीटर मौजूदा टोल की शरह हल्की मोटर गाड़ियों के लिए 1.73 रुपये, हल्की कमर्शियल गाड़ियों के लिए 2.79 रुपये, 2 एक्सल वाली भारी गाड़ियों के लिए 5.85 रुपये, 3 एक्सल वाली गाड़ियों के लिए 6.38 रुपये, भारी तामीराती मशीनरी के लिए 9.18 रुपये और 7 या उससे ज्यादा एक्सल वाली बड़ी गाड़ियों के लिए 11.17 रुपये फी किलोमीटर है। मुंबई एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने एक ब्राजील खातून को 11.1 करोड़ रुपए मालियत की कोकीन स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। DRI के मुंबई जोनल यूनिट के मखसूस इत्तला मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए हुकाम ने खातून को परवाज AF 218 के जरिए साओ पाउलो से मुंबई पहुंचने पर हिरासत में ले लिया है। तलाशी के दौरान खातून के अंदरूनी कपड़ों में 7 पाउच छुपे हुए पाए गए। मौके पर फील्ड किट से मुआयने के बाद उसकी कोकीन के तौर पर तस्दीक हुई। तहकीकात के दौरान खातून ने इतराफ़ किया कि वो 1110 ग्राम माए कोकीन लेकर आई थी, जिसकी बैन अक़वामी मार्केट में कीमत 11.1 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग के आग मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा कि इस भयानक वाक़े से मुतासिर अफराद की मदद के लिए फौरी इमदाद और बहाली के इक़दाम जारी है। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। वाज़ेह है कि जनूबी ज़िले के अनंतनाग के कादीपुरा गाँव में गुज़िश्ता रोज़ आतिशदगी के एक वाक़े में 1 दर्जन से ज़्यादा रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। वज़ीर आला ने इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए जुमे को अपने दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि अनंतनाग में खौफनाक आग ने कई मकानों को खाकिस्तर कर दिया है, जिससे कई कुंबे बेघर हो गए। उन्होंने कहा कि मुतासिर अफराद की मदद के लिए फौरी इमदाद और बहाली के इक़दाम जारी हैं। उनका पोस्ट में मजीद कहना था कि हम इस मुश्किल वक्त में मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। जनूबी कश्मीर के पश्तूना वहाब साहिब रोड को खोलने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर में असेंबली में बात की गई। वहीं त्राल में सड़क को खोलने की उम्मीद पैदा बढ़ गई है। इधर पश्तूना त्राल में लोगों ने समाजी कारकुन डॉक्टर पीरजादा मेराजुद्दीन रफीकी के साथ की क़ियादत में मार्च निकाला और मुतालबा किया कि सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि लोगों की दरीना मांग पूरी हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये रोड शो का यहाँ एक रोड मार्च का इनेकाद कराया है। ये यहाँ के सब बस्किनदार हैं, जहाँ सईदाबाद पश्तूना के सब लोग ये रहने वाले हैं। उनमें एक उत्साहत है, एक जोश खरोश है, जज्बा है, जो एक DPR इस तरह से बन गया है इस दोनों रास्तों के लिए, वापसा पसरा रोड का और बटनूर पहलगाम का। तो इनमें एक जोश खरोश नज़र आ रहा है कि लगता है कि एक उम्मीद है कि आज की बार ये होने वाली है। तो ये लोग इसकी इंतज़ार में बैठे हैं, बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इफ्तारी कलिमात में पहले ये ऐड करना चाहता हूँ कि त्राल पहाड़ियों में बंद पड़ा है। यहाँ कोई और मुतबादिल कोई ज़रिए माश नहीं, यहाँ बेरोज़गारी है, लोग यहाँ इफलास है, कारोबार नहीं है, पहाड़ियों में बंद पड़े हैं, छोटे छोटे पीजेंट्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। हमारे पास और कुछ यहाँ ऑप्शन प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। इंडस्ट्री बनना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज वी लिव एट अ फ्रिंज एरिया, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो
टूरिज्म का बून चल रहा है इस वक्त इस टाइम देयर द बून ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन एट नेशनल लेवल स्पेशली एट द कश्मीर लेवल देयर द बून इन टूरिज्म इतने लाखों के हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे रास्ते दो खोल दो यहाँ से टूरिज्म का एक कारवान चलेगा यहाँ से गतरो तराल कश्मीर के लोगों ने इलाके के अंदरूनी गली की बिगड़ती हुई हालत पर तशवीश का इजहार किया है जो बारिश के दौरान कीचड़ में तब्दील हो जाती है। मकामी लोगों ने गली की खराब हालत से बार बार होने वाली परेशानी को रोकने के लिए फौरी मरम्मत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि दीगर इलाकों के बरक्स जहाँ तामीराती और तरक्याती काम मुकम्मल है उनका मोहल्ला पीछे रह गया है। उन्होंने हुकाम से मोहल्ला की तरफ जाने वाली गली की मरम्मत को तरजीह देने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम रोजान त्राल गुतरो यथ पूरी नाम मलपुर यह पत्मो 10 वरियों पे आव कोच सोन नजर अंदाज कर वन सन गुजारिश तुहद चैनल जरिए गई ब्लाक वाले तक वातन अगर सारे कोचन वनकस काम चलान टल लाजक अपर यपर चलान प्रेथ कुछ नरेगा काम तरह PRI काम तरह मगर ये सानिस कोचस कहीं तरान कह वन वन यह नश मुखालफत नश कह मगर चीज़ कर काम रुदस मज तीज प्रॉब्लम गसान यपर तीज रब न बच्चे स्कूल गि न बुजुर्ग अगर कह नमाज नेर बेमार कह कर मेहरबानी कर अगर सारे जान काम चलान ये कोचस कर वनकस गाँव प्रेथ 4 जान चलान काम मगर ये कोचस कुने जाए काम खाली वन PRI त्रो फंड PRI मगर सह PRI वन बस यह सान गुजारिश ये कर कह कोचस ये वत गन ठीक पकन बन कह बिल्कुल रब कर तूफान हेकान नबर नेरित नमाज गो कह करो वन टोटली पकन ना दो। जनूबी जिला कोलगाम के पीरबल फसल गांव में जमा जुमे की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 साला बच्ची को टक्कर मारी जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौके ही मौत हो गई। इतलात के मुताबिक कोलगाम पीरबल फसल गांव में जुमे की सुबह उस वक्त सरासिमगी दौड़ गई जब तेज रफ्तार ट्रक ने 3 साला बच्ची को टक्कर मारी। मालूम हुआ है कि आसपास मौजूद लोगों ने कमसिन बच्ची को इलाज मुआलजे की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। कमसिन बच्ची की शनाख्त ज़ैनब जुनैद दुख्तर जुनैद अहमद सोफ़ी साकिन फुरसल के बतौर हुई है। ज़राए ने बताया कि पुलिस टीम फौरी तौर पर जाए मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर को दबोच कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया। रूस ने कहा कि यूक्रेन का रूसी तेल के डिपो पर हमला मुजव्वज़ा 30 रोज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मारिया ज़ाखरोवा ने रूस के चैनल 1 के साथ इंटरव्यू में बताया कि जंग बंदी की तजवीज़ पेश करने वाली अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन को अपनी इक़दामात के लिए जवाबदार ठहराए। उनका ये तबसरा यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सामने आया जिससे रूस के जनूबी कसनोदार इलाके में कौकासकाया गांव के नज़दीक तेल के एक डिपो में आग लग गई थी। मकामी हुक्काम ने जुमेरात की शाम एक बयान जारी कर कहा कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते के अवाइल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत की। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक मिस्टर ट्रंप और मिस्टर पुतिन ने इत्तेफाक किया कि तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जंग बंदी के साथ अमन की तरफ कदम उठाया जाएगा। शुमाली कोरिया ने जुमरात के रोज अपने जदीद तरीन तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम का तजुर्बा किया। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी KCNA ने जुमे के रोज इतला दी। एजेंसी ने कहा कि तजुर्बा मिसाइल सिस्टम की जामे कारकर्दगी को जांचने के लिए किया गया। इस मिसाइल सिस्टम को गोला बारूद की सनत के मुतालिका इदारे में पैदावार के लिए लगाया गया है। KCN की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल तजर्बे से साबित हुआ है कि जदीद तरीन तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम इंतहाई तेज रफ्तारी से हमला कर सकता है और इसका मजमूई हथियारों का निज़ाम इंतहाई काबिल एतमाद है। इसराइल की दिफाई अफवाज यानी IDF ने कहा कि उसने लबनान में फौजी अहदाफ पर हमला किया। इतला IDF ने टेलीग्राम पर एक बयान में दी है।
IDF ने कहा कि थोड़ी देर पहले IDF ने लेबनान के वक़ा इलाके में ज़ेर ज़मीन दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुश्तमिल फौजी ठिकाने पर हमला किया, साथ ही साथ जनूबी लेबनान में रॉकेट लॉन्चरों पर मुश्तमिल फौजी साइट पर हमला किया जहां हिजबुल्लाह की सरगर्मी की निशानदेही की गई थी। IDF ने कहा कि वो इसराइल को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। खबरों का आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चेन्नई में 22 मार्च को इजलास का इनेकाद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ की शिरकत मुतवक्के। इजलास में पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदियों पर किया जाएगा गौर ख़ौस। BRS कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस और BJP को बनाया तनकीद का निशाना, कहा ये दोनों सियासी पार्टियां हमेशा वोटों और सीटों में दिलचस्पी रखते हैं, तेलंगाना के मफादात तरक्की की कोई परवाह नहीं। बजट गुमराह कुन और बईद अज हकीकत, हुकूमत के पास कोई भी विजन नहीं। रियासत की माली हालत पर रेवंत रेड्डी के झूठे बयान, सिर्फ KCR के खिलाफ इल्जाम तराशी पर इंहिसार। कांग्रेस के मुतवातिर दरोगोई पर BRS प्रिविलेज नोटिस देने पर मजबूर हो जाएगी। गांधी खानदान के जरिए 420 वादों 6 जमानतों के नाम पर धोखाधड़ी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में के कविता का बयान। कांग्रेस हुकूमत का फिर एक बार मर्तबा आवाम के साथ धोखा, बजट सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का उलटफेर, हकीकत से काफी दूर। आवाम की फलाह बहबूद पूरी तरह नजरअंदाज। जिन्न और फसाद मुतासरीन को फिलफौर मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में मोहम्मद महमूद अली की तकरीर। कांग्रेस हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया और सिर्फ 6000 से कम मुलाजिमतें फराम किए। तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट मुबाहिस के दौरान हरीश राव का बयान। रियासत को वाजिबुल अदा फंड्स की अदम इजराई के बावजूद नायब वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। असेंबली में बजट मुबाहिस के दौरान मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। तेलंगाना भर में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज। रियासत के 11,547 स्कूलों से तकरीबन 5.09 लाख तलबा के इम्तिहान में शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझ। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.